तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी, आज हम क्या देखने जा रहे हैं सर? द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वेरिएंस एनालिसिस। द फर्स्ट वन विच कम्स विद द मटेरियल वेरिएंसेस। नाउ इन दिस मटेरियल वेरिएंसेस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप लोग आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हो एक सम वहां पर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Once again, welcome back to you. Now, first of all, we read the problem. You can see a BS Commerce education. It means BS Commerce have some difficulties to calculation of material variances. Material variances calculation करने के लिए BS Commerce को कुछ difficulties आ रही है। The details given as follow, और इसके मामले में कुछ details हमें दी गई है। The details are, you can see the material A, B and C types to there, the standardized form there and the actual forms there. So under the standardized we have a units and we have a prices to there. Under the actual we have a unit and prices there. इसका मतलब कि स्टैंडर्ड के अंदर में हमारे पास में यूनिट है मौजूद और उस यूनिट्स की पर प्राइस भी मौजूद है ना। एक्चुअल एज इट इज सेम, एक्चुअल का जैसे कि वैसे है। So A के लिए कितना है? For the A you can see the units 40 to there and the price for the units we have a 10 and unit for the 20 that is the actual और price है 35 rupees पर। The B का आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म देखेंगे तो 20 यहाँ पर यूनिट्स आ जाते हैं, प्राइस आ जाती है 20। यहाँ पर एक्चुअल फॉर्म देखेंगे B का तो 20 यूनिट्स इज देयर एंड द प्राइस आर 20 सो देयर। सो सी यू कैन सी द 20 एंड द 40, 30 एंड 30 फॉर द एक्चुअल। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। नंबर फर्स्ट वन that you can see what we are going to calculate to there, we are going to calculate the material variances. material variances हमें calculate करने हैं। तो पहला variances दोस्तों क्या आता है आप लोगों को मालूम ही होगा, ये देखकर जो थर्ड ईयर में बैचलर्स में मतलब पढ़ रहे हैं, these students knows very well what are the types to there for the material variances. The first one, material cost variances, इसको मैं फुल फॉर्म में भी लिख दूं, मटेरियल कॉस्ट variance. And what is the formula for the calculating material cost variances? material cost variances का formula क्या है? तो formula is SP into SQ bracket completed minus AP into AQ bracket completed. Sir, what is SP and what is SQ? What is AP and what is AQ? Now you can see here. You can see the standard price and the actual price. The standard price and a actual price. Standard price into a standard quantity. So where is the quantity, sir? These are the units and these are the, we have a unit, it means these are the quantities. Under the actual, these are the units, it means these are the actual quantities to we have. So the formulas comes with the standard price into a standard quantity bracket completed minus, yeah, minus into the bracket actual price into actual quantity to their material price. So let me solve these material cost variances with the categorized as by the materials. You can see A, B and a C. So let me go with the A. So A is equal to standardized price into a standard quantity. So let me see what is the standardized price for the A. The 10 is मतलब 10 रुपीज हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ओके, तो 10 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखते हैं ए के लिए कितनी है सर? 40 स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के लिए है। सो 40 ब्रैकेट कंप्लीटेड minus actual price into actual quantity. So we have an actual price to that a 35 for the A और 20 units हमारे पास में quantity पड़ी है। Okay, so into the bracket actual price, let me see once again, 35 into 20, 35 into 20. Okay, bracket completed. So the next step is 10 into 40, 35 into 20. Okay, it means we simply assumes that the 400 minuses 700
is equals to, that is the 300. Now 300 comes in a adverse effect या फिर आप इसको ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, दैट कम्स विद द ए। इट मीन्स ये 300 माइनस में आया है सर। 400 में से 700 माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स माइनस में आएगा 300 सर। दैट्स वाई वी कंसिडर द 300 इज द एडवर्स इफेक्ट्स टू देयर। दैट्स वाई वी रिटेन द one singular word that this is the A which comes with the adverse effect of 300 rupees for the A, which is we said that material cost variances सर हम इसको बोलेंगे। Let me go with the number B। आप मुझसे पहले कैलकुलेट कर सकते हो, हालांकि यदि अगर आप लोगों ने पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं तो बी के लिए कैलकुलेट करते हैं 20 इंटू 20, दैट अ स्टैंडर्डाइज प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 20 इंटू 20 minus, let me go with the minus sign, that 20 into 10 which comes with the actual quantity, 20 into 10, 20 into 10 bracket completed into 10 is equals to, ये देखिए आप लोग इसको जोड़ोगे तो आंसर निकल के आता है 400 माइनस 200। सो नाउ 400 में से 200 चले गए सर, तो प्लस में आएंगे हमारे पास में 200। And now if the answers comes in a plus, this effect is known as a favorable effect। ये favorable effect है सर, favorable effect। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं सिर्फ F लिखकर, favorable effect है। ओके, let me go with this C। तो C का देखते हैं, C का क्या है सर। C का है 40 into 20, that is the standardized format, 40 into 20 into the bracket 40 into 20 bracket completed, which comes with the standardized price into a standard quantity। yes my dear friends, okay। so now next one देखते हैं सर। actual का है 30 into 30, 30 okay, 30 into 30 that is the 30230 is equals to, इसको ये अगर आप जोड़ोगे तो 40 into 20 कितना बन जाता है, which comes with the 800, isn't it? yes sir। 800 minus is 30 into 30, that is this comes with the amount that we said the 900। so now as it is you can see 800 में से 900 माइनस करेंगे सर तो माइनस में 100 हमारे पास में आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा कि 100 माइनस में आ रहा है तो ये इफेक्ट हमारा क्या होगा सर, दिस इफेक्ट नोन एज अ एडवर्स इफेक्ट। तो मैं फिलहाल के लिए अभी सिर्फ ए लिखता हूँ क्योंकि आप लोगों को एडवर्स इफेक्ट मालूम है, ऊपर मैंने बता दिया। सो ए बी और सी दैट कम्स विद द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया, ए बी और सी। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, द टोटल्स, टोटल क्या इफेक्ट निकल के आता है। नाउ एडवर्स एंड द एडवर्स मतलब 300 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 400 ओके, और 400 में से 200 माइनस करेंगे। फिलहाल के मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 300 प्लस 100, 300 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 400 ओके। अब ये 400 में से हम माइनस करेंगे क्या सर, ये 200, क्यों, ये फेवरेबल इफेक्ट है ना दोस्त, तो ये 200, तो बचा कितना 200। सो द 200 कम्स विद दी, माइनस में आ रहा है 200 विच कम्स विद दी एडवर्स इफेक्ट्स टू देयर। 200 माइनस में आ रहा है तो ये एडवर्स इफेक्ट हो जाता है सर ओके। तो ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अभी चलिए कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट वाला वेरिएंसेस, नंबर सेकंड वेरिएंसेस देखते हैं। यदि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दें, यदि अगर नहीं तो प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी देखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। सो हाउ टू वी कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, मैं लिख दूँ यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस इज इक्वल्स टू, तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस actual price bracket completed into a actual quantity। what is the formula? The formula comes with the standard price minus actual price bracket completed into a actual quantity, yeah of course actual quantity। so let me go with the A के साथ में यदि अगर मैं जाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज
प्राइस हमें ए की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया है सर, द स्टैंडर्ड प्राइस आर देयर फॉर द ए 10 है, ओके। तो 10 माइनस इज एक्चुअल प्राइस, लेट मी गो विद द एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस कितनी है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है 35 इज द एक्चुअल प्राइस टू देयर, 35 है सर एक्चुअल प्राइस, ओके यस 35 ब्रैकेट कंप्लीटेड इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी मुझे देखनी है, कितनी है एक्चुअल क्वांटिटी एक के लिए सर 20 एक्चुअल क्वांटिटी है सर, 20 रुपीज, सॉरी 20 यूनिट्स। सो इज इक्वल्स टू, ये देखकर मैं इसको जोड़ू तो आंसर यहाँ पर निकल के आता है, दैट्स कम्स विद द 500 एडवर्स इफेक्ट। आप लोग जोड़ के देख लीजिए, ठीक है, हमारे पास में टाइम कम होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 माइनस 35 इनटू अ 20, जो भी अमाउंट बचती है वो अमाउंट, दैट इज द कम्स विद द आई थिंक 10 में से 35 में से 10 गए सर, 25 आता है, 25 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 500 विच कम्स विद द एडवर्स इफेक्ट, बिकॉज 10 में से 35 माइनस करे दैट्स कम्स विद द एडवर्स इफेक्ट, माइनस में आंसर आ रहा है, दैट्स कम्स विद द एडवर्स इफेक्ट। लेट मी गो विद द बी, बी के साथ में जाता हूँ, दैट बी की प्राइस यहाँ पर देखते हैं। तो बी की प्राइस स्टैंडर्डाइज है 20, तो वो 20 ले लेते हैं सर, इन दिस ब्रैकेट 20 माइनस दिस एक्चुअल प्राइस देखते हैं, द एक्चुअल प्राइस कम्स विद द 20। ओह, तो 2020 इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगा सर, हाँ खेलना चाहिए, ठीक है। तो 20 माइनस 20, अभी देखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी विच कम्स विद द बी, बी के लिए एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 10 है सर, ओके। सो नाउ यदि अगर मैं 10 यहाँ पर लेता हूँ तो आंसर यहाँ पर क्या निकल के आता है, तो दोस्त यहाँ पर आंसर निकल के आता है 0, दैट्स नोन एज अ नील। तो यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, नील लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नील आ जाता है। नंबर सी के साथ में जाएंगे, 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स कम्स विद नील, ओके, कोई बड़ी बात नहीं वहाँ पर। लेट मी गो विद दिस सी, सी के साथ में जाएंगे सर, सी की प्राइस है 40, ओके। तो 40 ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस 30 एक्चुअल प्राइस टू देयर, ओके ओके, 40 माइनस 30 विच कम्स विद द 10 इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि फॉर्मूला में बताया गया है एक्चुअल क्वांटिटी लेना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी भी 30 ही है सर, देखिए सी की, तो 30। चलिए आंसर देखते हैं, लेट मी गो विद द आंसर, द आंसर कम्स विद द 300 फेवरेबल इफेक्ट, क्योंकि प्लस में आ रहा है, 40 में से 30 गए तो 10 बचे, 10 इंटू 30 इज कम्स विद द 300, ओके। तो इसको टोटल करके देखते हैं, लेट मी गो विद द टोटल। सो 500 में से 300 चले गए, बिकॉज दिस इज द एडवर्स, माइनस इज 300 देयर एंड द 200 कम्स विद द एडवर्स इफेक्ट, बराबर है, माइनस में आ रहा है ना 200, एडवर्स इफेक्ट है सर, दिस कम्स विद द एडवर्स इफेक्ट देयर, ओके। तो ये तो रहा भैया आपका मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस। अभी चलिए कैलकुलेट करते हैं नंबर थर्ड वाला वैरिएंसेस, जिसका नाम है मटेरियल यूजेस वैरिएंसेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं फिर से लिख दूं, मटेरियल यूजेस वैरिएंसेस, ओके यस, इज इक्वल्स टू, मटेरियल यूजेस वैरिएंसेस कैसे निकालते हैं सर, नाउ द फॉर्मूलाज आर देयर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना, हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट कंप्लीट इनटू अ स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस, standard quantity minus actual quantity into a standardized price is equals to known as a material uses variances. So let me go with the A के साथ में जाऊंगा, तो पहले A है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर मुझे A की देखनी पड़ेगी, तो A की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी सर 40 यूनिट्स आते हैं, तो 40 यूनिट्स हैं, ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, 40 माइनस इज एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है इसकी सर, एक्चुअल क्वांटिटी है 20, आप लोग देखिए यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी है 20, so 40 minus 20 bracket completed into a standardized price. So what is the standardized price? The 10 rupees is the standardized price for the a 10 rupees. Now is equals to, तो यहाँ पर आंसर निकल के आता है 200 which comes with the favorable balance. 40 में से 20 गए तो 20 बचे सर, 20 into 10 is equals to 200, that comes with the favorable balance, okay. नंबर बी के साथ में जाएंगे भैया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, दैट 20 यूनिट्स आते हैं, तो 20 यूनिट्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले रहे हैं, 20 यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ पर है, तो ये रही एक्चुअल क्वांटिटी, दैट 10 यूनिट्स देयर, ओके, द 10 यूनिट्स
सो सॉरी, सो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 माइनस 10 आ रहा है, इनटू क्या करेंगे, एक्चुअल क्या बोला है, स्टैंडर्डाइज प्राइस। तो वेयर इज द स्टैंडर्डाइज प्राइस है, स्टैंडर्डाइज प्राइस आर 20 फॉर द बी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो 20 यहाँ पर स्टैंडर्डाइज प्राइस लेंगे और इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या निकल के आता है, ओहो 20 माइनस 10, तो 10 प्लस में आ रहा है सर, माइनस में नहीं आ रहा है। ओके 20 में से 10 चले गए, 10 बचा, 10 इंटू 20 विच कम्स विद द 200 ऑफ फेवरेबल बैलेंस। तो ये भी फेवरेबल है, वाह वाह क्या बात है, एडवर्स हो गया ना, फेवरेबल लिख दो। चलो ये हो गया आपका एफ, फेवरेबल बैलेंस। लेट मी गो विद द सी, सी का है स्टैंडर्डाइज प्राइस, सॉरी स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी, दैट कम्स विद द 20, 20 माइनस 30 एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, 20 में से 30 गए तो माइनस आ रहा है, इंटू 10 इंटू व्हाट इज द फॉर्मूला, द स्टैंडर्डाइज प्राइस। ओके, a standardized price of 40 is there, 40 है, एक बार चेक करते हैं, 40 है सर, ओके नो प्रॉब्लम। सो 20 minus is 30 which comes with the 10, 10 into 40 which comes with the 400 into the adverse effect, 400 बराबर है 400 adverse effect में आ रहा है सर, क्योंकि माइनस में आ रहा है, 20 में से 30 गए तो 10 आ रहा है, दैट्स कम्स विद द माइनस साइन। अब इसको टोटल करके देखते हैं, तो टोटल आप लोगों को करके देखते हैं, चलिए मतलब टोटल करके देखते हैं, तो आप लोगों को ये मालूम है 200 प्लस दैट कम्स विद द 400 एंड एडवर्स 400 विच कम्स विद द माइनसेस, दैट मीन दिस बैलेंस इज अ नील बैलेंस, है ना, हाँ नील बैलेंस है बराबर। सो दिस बैलेंस इज अ नील बैलेंस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इतना होने के बाद में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर और एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ। तो इतना होने के बाद में आप लोग कैसे चेक करेंगे, हाउ टू वेरीफाई वेदर इट्स योर आंसर करेक्ट और नॉट, फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वन लेना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख दूँ वेरीफाई, तो कैसे लेना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कितना आया है निकल के, किधर है भाई, हाँ ये रहा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस विच कम्स विद द एडवर्स 200। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 200 एडवर्स में है सर, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ फिर से, एडवर्स है मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, तो देखिए ये रहा हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस विच कम्स विद द नील है। ओके, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस देखते हैं, सो सॉरी मैंने बताया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है ना, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस भी एडवर्स हैं। ओके ओके, तो ये भी एडवर्स है बैलेंस, तो यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट लिख दूँ, और मेरे ख्याल से ये भी बैलेंस देख लीजिए आप, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस का 200 भी एडवर्स में है, तो 200 एडवर्स 200 एडवर्स, इट मीन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस दैट कम्स विद द 200 एडवर्स प्लस अ नील अमाउंट दैट कम्स विद द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस ए। तो ये रहा भैया हमारा पहला प्रॉब्लम। यदि अगर आप लोगों को सेकंड प्रॉब्लम देखना है तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।